السلام علیکم سیدہ سینٹر کے پیارے ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک اور پراسرار اور بھیانک کہانی کے ساتھ حاضر ہیں۔ دیکھیے اور شیئر کیجیے اور ہمارے چینل سیدہ سینٹر کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیے، آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیجیے گا۔ میں ان دنوں 6 برس کی تھی۔ ایک دن امی کو بتائے بغیر ماموں کے گھر چلی گئی۔ ان کا گھر قریب ہی تھا۔ باتوں باتوں میں مومانی نے پوچھ لیا، کیا بڑی خالہ تمہارے گھر آتی ہیں؟ اتفاق کہ اسی دن بڑی خالہ آئی ہوئی تھی، وہ آج ہی ہمارے گھر آئی ہیں۔ میں نے جواب دیا اور ان کے بچوں کے ساتھ کھیل میں مصروف ہو گئی۔ تھوڑی دیر کھیل کر اپنے گھر لوٹی تو امی نے سوال کیا، مینا تم کہاں غائب ہو گئی تھی؟ ماموں کے گھر گئی تھی اماں، مجھے بتائے بغیر۔ کتنی بار کہا ہے کہ بغیر بتائے کہیں مت جایا کرو، میں پریشان ہو گئی تھی، ابھی تمہیں ڈھونڈنے کو نکلنے والی تھی۔ کیا پوچھ رہی تھی وہ تم سے؟ خالہ نے پوچھا۔ وہ پوچھ رہی تھی کیا بڑی خالہ تمہارے گھر آتی ہے، میں نے بتایا تو امی اور خالہ دونوں کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ ہم اسے منہ نہ لگائے، پھر بھی اسے ہماری جاسوسی کی پڑی رہتی ہے، نہ جانے کیا کیا نہیں کریدا ہوگا بچی سے۔ کل جا کر خبر لوں گی اس کی۔ دوسرے روز وہ مانی کے گھر گئی اور ان سے جھگڑنے لگی کہ تمہیں کیا حق پہنچتا ہے ہماری جاسوسی کرنے کا، تم نے مبینہ سے کیوں پوچھ گچھ کی؟ میں نے اگر ایک بات یوں ہی پوچھ لی تو اس میں ایسی بگڑنے والی کیا بات ہے؟ آپ تو خوامخواہ جلو مرو تم اور جھلسے میرے دشمن۔ بڑی خالہ بھی جھگڑے میں کود پڑی بھاوت سے، منہ سنبھال کر بات کرو، لگتا ہے آپے میں نہیں ہوں۔ بس پھر کیا تھا، نند اور بھاوچ میں خوب لڑائی ہوئی۔ چھوٹی مومانی نے بڑی مومانی کی حمایت کی، یوں نوبت ہاتھا پائی تک پہنچ گئی۔ چاروں ایک دوسرے پر ہاتھ اٹھا رہی تھی۔ بڑی مومانی دھاڑے مار مار کر روئی۔ امی اور خالہ بھی اپنے بالوں کو نوچتی ہوئی روتی پیٹتی گھر آ گئی۔ جب رات کو دونوں ماموں گھر آئے تو بیویوں نے بلک بلک کر آہوازاری کی، آج تمہاری دونوں بہنوں نے ہمارے گھر آ کر ہماری بے عزتی کی ہے، مار پیٹ کر کر گئی ہیں۔ وہ اتنا پھوٹ پھوٹ کر روئی کہ گھبرائے ہوئے دونوں ماموں اسی وقت ہمارے گھر آئے اور بہنوں سے پوچھا، ایسی کیا بات آپ لوگوں نے کہی جو ہماری بیویاں گھر چھوڑنے پر آمادہ ہیں؟ بہنوں نے اپنی سی کہی تو بھائی بھی غصے میں آ گئے اور کہا، تم لوگ ذرا ذرا سی بات پر ہنگامہ کرتی ہو، اگر ایسے ہی ہنگامہ کرنا ہے تو مت آیا کرو۔ وہ ویسے ہی غصے میں کہہ کر گئے۔ والدہ اور خالہ نے اس بات کو خاندان بھر میں جا کر کہا کہ ہمارے بھائیوں نے اپنے گھروں کے دروازے ہم پر بند کر دیے ہیں۔ خاندان والوں نے بھی اس بات کو خوب اچھالا۔ کیسے بھائیوں سے پھر کیا رشتہ ناتا رکھنا، ان سے کہو تمہارے حصے کی جائیداد تقسیم کر دیں، ورنہ عدالت سے اپنا حق لے لو۔ یہ باتیں جب کچھ رشتہ داروں نے جا کر ماموں سے کہی اور ایک کی چار لگا کر سنائی تو وہ بولے، ہماری بہنوں سے کہو جا کر عدالت کے ذریعے اپنا حصہ لے لے، یوں تو ہم نہیں دیں گے۔ یہ سننا تھا کہ امی اور خالہ کا پارا 7ویں آسمان پر جا پہنچا اور انہوں نے اپنے بھائیوں کو نیچا دکھانے کے لیے ایک بہت بڑے عامل کا سہارا لیا۔ بہن بھائیوں کے پیارے رشتے ختم ہو گئے، محبت بھرا سلوک فنا ہو گیا، اپنا ہی خون ایک دوسرے کے خون کا پیاسا ہو گیا۔ دراصل جس عامل بابا کے پاس امی اور خالہ گئیں وہ بہت پہنچا ہوا عامل تھا اور ناجائز طریقے سے دولت کو حاصل کس طرح کرنا ہے، بچھڑے ہوئوں کو کس طرح ملانا ہے اور کس طرح جائیداد کو حاصل کرنا ہے، یہ سب اسی کا کام تھا۔ اس کے پاس بہت سے موکلات تھے، ان میں سے ایک جن تھا جس کا نام تھا سلیمان۔ سلیمان یوں تو بہت نیک جن تھا، لیکن اس عامل بابا کے پاس آ کر، اس کی باتوں میں آ کر اس نے انسانوں کے ساتھ بہت سا برا سلوک کیا۔ امی اور خالہ نے منہ مانگے دام دیے، عامل بابا نے اس جن کو ماموں پر چھوڑ دیا۔ چونکہ وہ دل کا اچھا تھا لیکن پھر بھی اپنے مالک کی سنتا تھا، آقا کے کہنے پر اس نے ماموں کے پورے کاروبار کو تباہ کر دیا، یہاں تک کہ ماموں نے امی اور خالہ کے پیروں پر ہاتھ رکھ کر ان کے قدموں میں پڑ کر معافی مانگی۔ تب کہیں جا کر امی اور خالہ کو سکون آیا۔ لیکن انسان اگر غلط راستے کو چنتا ہے تو تباہی اس کے مقدر میں بھی آتی ہے۔ اس کام کے لیے امی کا اتنا خرچہ ہوا کہ رہی صحیح پونجی بھی ختم ہو گئی۔ اتنا سرمایہ جائیداد سے نہ ملنا تھا کہ جس قدر سرمایہ اس عامل بابا کو دینے پر لگ گیا۔ ذہنی پریشانی الگ بھگتی اور ماموں کی محبت کو الگ ترستے رہے، کیونکہ بظاہر تو انہوں نے سب کچھ صحیح کر دیا تھا لیکن وہ لوگ تباہ ہو گئے تھے۔ ان دنوں ہم پوری طرح مالی پریشانیوں میں گھر چکے تھے۔ میں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا، چونکہ بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی، جو کنبے کا بوجھ مجھ پر آ گرا۔ روز نوکری کی تلاش میں ماری ماری پھرنے لگی۔ اس عامل بابا نے تو ہمارا کیا کام کیا۔ ماموں آئے اور چلے بھی گئے، ان کی زندگی پھر سے سنور گئی، لیکن ہم لوگ تباہ ہو گئے۔ پھر اتفاق سے ایک کمپنی میں انٹرویو دینے گئی
वहाँ इंटरव्यू बोर्ड के मेंबरान में मामू बैठे थे। मुझे देखा तो गुमसुम हो गए। इंटरव्यू देकर बाहर आई, वो भी ऑफिस से उठकर मेरे पीछे आए, मुझे पुकारा। मुड़कर देखा तो सामने मामू थे। बोले, मेरी कार खड़ी है, चलो आओ मेरे साथ, उसमें बैठ जाओ। मैंने कुछ नहीं कहा, खामोशी के साथ उनके हुक्म की तामील की। कहने लगे, नहीं जानता था कि तुम्हारे हालात ऐसे हो चुके हैं और तुम नौकरी के लिए दर दर मारी मारी फिर रही हो। ऐसी बात थी तो मुझे टेलीफोन कर दिया होता। फिर बोले, दरअसल तुम्हारी माँ की जिद की वजह से मैंने ये सब काम किया। देखो, हिस्सा भी दे दिया, लेकिन आज तक तुम लोग परेशान ही हो। खैर, अब तुम नौकरी की खातिर कहीं मत जाना, कॉलेज में दाखिला ले लेना। मैं तुम्हारी तालीम का खर्चा दूंगा और तुम्हारी माँ का जायदाद में जो हिस्सा बनता है वो तो मैं दे चुका हूँ, उसके अलावा भी मिल जाएगा। तुम्हें इस हाल में देखकर मैंने फैसला किया है कि मैं इस सारी लड़ाई बंद कर दूं। मामू जान ने मोहब्बत में जो बात कही तो खुशी से मेरी आंखों से आंसू बह निकले। घर आकर अम्मी को बताया तो वो भी रो पड़ी। बोली, देखो आमिल बाबा का कमाल है। भाई पहले आए थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जिन्नात और मुक्किलात के मजबूर करने पर आए हैं। आमिल बाबा का अमल कारगर साबित हुआ। मैं तो बस ये अमल करना ही नहीं चाहती थी, लेकिन क्या करती, हालात कुछ ऐसे हो गए थे। और आज देखो, भाई के दिल में बहन की मोहब्बत फिर से आ गई। ये तो भाभी जान से झगड़ा हुआ, गुस्से में ऐसा कदम उठा लिया, ख्वामाखा भाइयों को परेशान किया। अब मुझे जायदाद नहीं, भाइयों की जरूरत है। हिस्सा जाए भाड़ में, भाइयों को खोकर भला मैं ऐसी जायदाद का क्या करूंगी। मैं हैरत से अम्मी को देख रही थी। एक तरफ तो काला जादू करने वाले आमिर के पास गई, जिन्नात को अपना असीर बनाया, उन जिन्नात ने मारपीट करके मामू को परेशान किया, और अब जबकि वो आमिल बाबा के या फिर अल्लाह के हुक्म पर ये काम कर रहे थे, यानी अपनी बहनों के लिए उनके दिल में मोहब्बत आई तो माँ पिघल गई। खैर, मुझे क्या था, मैं तो देख रही थी कि बरसों पुरानी वो दुश्मनी खत्म हो गई। जो 12 बरस बाद अम्मा और मामू में सुलह हो गई। जायदाद में जो हिस्सा बनता था उससे कहीं ज्यादा उन्होंने मेरी वालदा को दे दिया। छोटी बहन का रिश्ता अपने बेटे सफदर और मेरा रिश्ता मामू जान ने अपने लड़के से कर लिया। मंगनी के साल बाद मेरी शादी रफ़ी से हो गई और हम हनीमून मनाने के लिए पहाड़ी इलाके में गए। इस्लामाबाद में ताया का घर था। उन्हें खबर हुई तो होटल आए और खाने की दावत दे गए। अरसे से उनसे कुछ ताल्लुक और राब्ता न था। अब उन्होंने मदू किया तो मैंने सोचा दावत को रद्द करना बुरी बात है, सो हामी भर ली। अगले दिन शाम को दावत पर गए। ताई और उनके बच्चों ने इसरार किया कि अब आई हो तो एक दिन हमारे पास रहो। रफ़ी ने कहा, मुझे दोस्त की शादी में जाना है, बेशक आज रात मीना आपके पास रह जाए, मैं कल शाम को आकर ले जाऊंगा। शोहर से भी इजाजत मिल गई और मैं ताया के घर ठहर गई। रफ़ी चले गए, शायद वो उनके घर ठहरना नहीं चाहते थे। उसके बाद रफ़ी के साथ क्या अजब वाक़या पेश आया कि कानों को यकीन आता है और ना दिल को। उन्हीं की जुबानी सुनिए। मीना उस रात तुम्हें ताया के घर छोड़कर होटल आया। सोचा आज रात किसी दूसरे कम किराए वाले होटल में कमरा ले लेता हूँ, एक रात ही तो बसर करनी है। सुबह वैसे भी हमें सैर के लिए वापस जाना है, फिर हम अपने शहर आ जाएंगे। रात हो रही थी। होटल की सीढ़ियां उतरा तो सड़क पर ही एक टैक्सी ड्राइवर नजर आया। उससे किसी दरमियाने दर्जे के होटल का पूछा। उस टैक्सी ड्राइवर के पास एक 18-19 बरस का लड़का खड़ा था। उसको देखकर पहले मैं चौंका, क्योंकि इतना हसीन और हरी आंखों वाला, सब्ज आंखों वाला लड़का मैंने आज तक नहीं देखा था। लेकिन जिस इलाके में मैं आया था वहां पर रहने वाले तो खूबसूरत होते ही हैं, इसलिए दिल को मैंने समझा लिया। उस पर से नजर हटाई। लड़के ने अपना नाम अजमत बताया। वो एक खूबरू सीधा सादा सा नौजवान लगता था। उसने कहा, साहब मैं भी यहाँ सैर को आया हूँ, करीब एक होटल में ठहरा हुआ हूँ। अच्छा होटल है और बहुत मुनासिब किराया है, चाहे तो आपको वहाँ लिए चलता हूँ, चाहे तो मेरे साथ ठहर जाए, शायद इस वक्त कोई कमरा खाली ना मिले। अच्छा चलो देख लेते हैं, कहकर मैं उसके हमरा हो लिया। मैं और वो होटल में आ गए। उसका कमरा पहले से बुक था। उसने मेरा बैग उठा लिया और अपने कमरे में ले आया, जहाँ 2 बिस्तर अलग अलग मौजूद थे। अपने लिए वो खाना लेने चला गया और मैंने वजू करके इशा की नमाज पढ़ी। थकन हो रही थी। एक तरफ लगे सिंगल बेड पर लेटते ही मैं सो गया। सुबह मेरी आंख खुली, दूसरे सिंगल बेड की तरफ निगाह डाली जो अजमत का था, लेकिन वहां अजमत नहीं था बल्कि एक नौजवान 17 बरस की लड़की बैठी हुई थी। उसे देखते ही जैसे मेरे बदन में लहू जमकर रह गया। मैं उठकर बैठ गया और लड़की से सवाल किया, तुम यहाँ कैसे? वो लड़का कहाँ है? वो बोली, कौन सा लड़का? यहाँ तो कोई लड़का नहीं है, तो तुम यहाँ कैसे आ गई? कहने लगी, वाह बड़े भोले बन रहे हो, मजाक करते हो, रात होती तो मुझे लाए हो।
मैं समझ गया कि कोई ना कोई चक्कर है, ये लोग मुझे फंसा रहे हैं। बस यही सोचा, जितना पैसा ये लड़की मांगे मैं इसको दे दूंगा और जान छुड़ा लूंगा, वरना लेने के देने न पड़ जाए। बदनामी से ज्यादा तुम्हारा और तुम्हारे रिश्तेदारों का खौफ मुझे सहमा रहा था कि तुम मेरे साथ यहाँ पर हो। अगर मामला खुल जाता तो तुम क्या सोचती? तभी उस लड़की से मुखातिब हुआ, देखो बीबी, साफ साफ मुझे बता दो कि तुम्हें कितना रुपया चाहिए। वो बोली, रुपया नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। क्या मतलब? मैंने तुम्हें आज तक नहीं देखा, पर अब तो देख रहे हो। क्या मुझ जैसी हसीन लड़की कभी देखी है? क्या तुम्हारी बीवी मुझसे ज्यादा खूबसूरत है? ये सब छोड़ो, पर ये बताओ वो लड़का कहाँ गया? मैं नहीं जानती। अगर तुमने नहीं बताया तो सच में तुम्हें बदनाम कर दूंगा मैं। हाँ तो कर दो ना, वैसे भी तुम इंसान क्या कर सकते हो। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं एक जिनजादी हूँ। जिनजादी? हाँ, मैं वही जिनजादी हूँ कि जिसको तुम्हारे बाप के पीछे तुम्हारी बीवी की माँ ने लगाया था। मैं समझा नहीं, तुम क्या कहना चाहती हो? मैं नहीं, ये बात मेरा भाई तुम्हें बताएगा। उसी वक्त वही लड़का जिसने अपना नाम अजमत बताया था वहां पर नमूदार हुआ। उस वक्त वो अजब होलिये में था, लंबा सा सफेद लिबास पहने हुए था और ऐसा लग रहा था कि वो हाफिज कुरान है, क्योंकि उसके हाथ में कुरान मजीद था। उसने कहा, हम नेक जिन्नात हैं, लेकिन तुम्हारी बीवी की माँ ने काले जादू करने वाले आमिल के पास जाकर हमें तुम्हारे बाप को बर्बाद करने के लिए भेजा। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा। ऐसा कैसे हो सकता है? यकीन नहीं आता तो अपनी बीवी को इसी वक्त यहाँ बुलाओ। वो कैसे आ सकती है? तो फिर हम उसे ले आते हैं। नहीं नहीं, मैं उसे बुलाता हूँ, बल्कि उसे लेकर आता हूँ। तुम लोग यहीं पर रहना। उसके बाद मेरे शौहर मेरे पास आए। अब कहानी मेरी जुबानी सुनिए। मैंने कहा, क्या हुआ रफ़ी, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? क्या कोई परेशानी की बात है? बताइए मुझे। चलो तो सही। वो मुझे दूसरे होटल में लेकर आए। मैंने कहा, वो होटल कहाँ गया? वो बहुत महंगा था, मैंने कमरा कहीं और लिया हुआ है। उन्होंने उस वक्त मुझे बात तफसील से नहीं बताई। जब हम कमरे में दाखिल हुए तो उसी वक्त मेरी नजर उस खूबसूरत नौजवान पर पड़ी। ये कौन है? ये कौन है? और इसके साथ ये लड़की? ये क्या मामला है रफ़ी? क्या आप इन लोगों को जानते हैं? क्या ये आपका दोस्त है? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं इनको नहीं जानता, लेकिन ये तुम्हें जरूर जानते हैं। मुझे? मैंने तो इसे आज तक नहीं देखा। ये बताओ, मेरे बाप से बदला लेने के लिए तुम्हारी माँ ने क्या किया था? या किस लहजे में बातें कर रहे हैं? बताओ मुझे, 15 साल पहले क्या हुआ था? अगर तुम नहीं बताओगी तो देखना मैं तुम्हें नहीं, अभी आप कुछ मत बोलें। मैं घबरा कर बोली, मैं आपको बताती हूँ। यानी तुम भी इस राज को जानती हो? नहीं, मैं तो बच्ची थी, मुझे नहीं पता मेरी अम्मी ने क्या किया, लेकिन खाला के साथ मिलकर उन्होंने मामू जान पर जिन्नात का हमला करवाया था। और मेरी अम्मी के मुताबिक उनमें एक सुलेमान जिन था। मेरा नाम सुलेमान ही है, लेकिन मैंने इन्हें अपना नाम अजमत बताया है। मैं एक नेक जिन था, हाफिज कुरान। मैं चाहता था कि किसी को तबाह न करूं, लेकिन तुम्हारी माँ और खाला की वजह से मुझे अपने मालिक की बात मानना पड़ी। उसने मुझे कैद किया हुआ था। मैं तो अपनी दुनिया में बहुत मजे से जी रहा था, लोगों को दीन की तालीम देता, कुरान पढ़ाता, लेकिन उस काला जादू करने वाले आमिल ने मुझे कैद कर लिया। और अगर मैं उसकी बात नहीं मानता तो वो मुझे आग के कोड़े मारता। लेकिन तुम तो खुद आग के बने हुए हो। ये वो आग नहीं है, ये वो आग थी जिससे जिन्नात भी जल जाते हैं, झुलस जाते हैं। फिर यह हुआ कि तुम्हारी माँ और खाला ने मुंह मांगी रकम दी उस काला जादू करने वाले आमिल को और मुझे भेज दिया गया इनके बाप के पास। तभी कहूँ, उस वक्त मेरे बाबा की हालत ऐसे कैसे हो गई थी? वो रातों में चीख चीख कर उठते और कहते, कोई मेरा गला दबा रहा है, कोई मेरे सीने पर बैठ गया है, कोई जिन आकर मुझे मारता है। लेकिन किसी ने यकीन नहीं किया। वो तो ठीक हो गए क्योंकि हमने उनका इलाज कराया था। लेकिन तुम कैसे आजाद हुए? दरअसल मैं चूंकि एक मुसलमान जिन था और मुझे उस काला जादू करने वाले आमिल ने गलत तरीके से कैद किया था। फिर उस वक्त ये जिनजादी आई। अल्लाह की मेहरबानी से इसने मेरी मदद की। इसकी ताकत ज्यादा थी तो मैं इसी के साथ हो गया। फिर इसने मुझे भाई बना लिया और ये मेरी बहन है। इसी के कहने पर मैं यहाँ आया हूँ ताकि इस लड़की को मैं तंबी कर सकूं कि जिस खानदान को तुमने तबाह करना चाहा, मैं नहीं जानती कुछ भी। रफ़ी, आप यकीन करें। मैं यकीन कर रहा हूँ। तुम्हारी माँ से तो मैं शहर जाकर पूछूंगा।
अब बताओ तुम क्या चाहते हो? मैं कुछ नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी माँ तौबा करे। उसने काला जादू करवाया है, वो इस्लाम से खारिज हो चुकी है। हमें इसी वक्त तुम्हारे घर जाना होगा। अगर तुम हमें लेकर अपने घर ना गई तो याद रखना तुम्हारी माँ बेमौत मारी जाएगी। नहीं नहीं, मेरी अम्मी को कुछ मत करना। चले रफ़ी, मेरे साथ चलिए। मैं अम्मी के बदले आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मत मांगो मुझसे माफ़ी। मेरे बाप ने तुम पर रहम किया, तुम्हें आसरा दिया, अपने बेटे से तुम्हारी शादी कराई, और तुम्हारी माँ ने, वो एक गलती थी जो बिला वजह एक बहुत बड़ी जड़ बन गई लड़ाई की। अम्मी माफ़ी मांग लेंगी आपसे और मामू जान से। फिर हम अपने घर पहुँचे। रात का वक्त था, अम्मी सो रही थी। अचानक वो चीखने लगी, ये कौन आया है? बेटा तुम हो? जी अम्मी मैं हूँ। और तुम्हारे साथ ये दो कौन हैं? ये वही जिन्नात हैं, वही मुक्किलात हैं जिन्हें आपने मामू जान के पास भेजा था। अम्मी क्यों किया आपने ऐसा? अम्मी को पुराना वक्त याद आ गया। लेकिन बेटा उस वक्त कुछ ऐसी आफत आ पड़ी थी और फिर हम दीन से हट गए थे। बहुत बुरा किया था हमने। हम तो मुसलमान भी ना रहे थे, दोबारा कलमा पढ़ा और मुसलमान हुए। ऐसे कैसे कलमा पढ़ लिया? सच्ची तौबा की? हाँ तौबा की। जब मेरे भाई ने सुलह कर ली तो उस वक्त मैं बहुत शर्मिंदा हुई कि मैंने क्या कर दिया था। उस आमिल को पैसे खिला खिला कर खुद भी बर्बाद हुए। और बेटा मैं सच कह रही हूँ, ये सब मेरे कहने पर नहीं हुआ। मेरी दूसरी बहन जिसने छुपकर शादी की थी, दरअसल वही काला जादू करने वाले आमिल को जानती थी और इन चक्करों में पड़ चुकी थी। उसी के कहने पर मैंने अपने भाई पर अमल करवाया। आज देखो उसकी मौत इसी वजह से हुई। उसको एक और शैतान जिन ने मार डाला था। वो भी रातों में उठकर पागलों की तरह भागती थी, पूरे घर में दौड़ती रहती थी। उसे कोई थप्पड़ मारता था, फिर उसी जिन ने उसे छत से नीचे फेंक दिया। देखो उसका अंजाम तो बुरा हुआ। अब तुम मुझे क्या सजा देना चाहते हो दे दो। मैं आपको क्या सजा दूं? आप खुद अपनी आग में जल रही हैं। आज भी आप नादिम हैं। बेटा अपने बाप को ये बात नहीं बताना, वरना उनका और मेरा रिश्ता टूट जाएगा। वो रिश्ता जो 12 साल एक दूसरे से अलग रहा। हम दोनों बहन भाई एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन तुम्हारी बड़ी फुप्पो की वजह से मैंने ये लड़ाई की, वरना मुझे कोई एतराज नहीं था। वो जिन चक्करों में पड़ गई थी उसी की वजह से ये सारी बर्बादी आई। वो तो अपने अंजाम को पहुंच गई, लेकिन मैं हर रात अल्लाह ताला से माफ़ी मांगती हूँ। उसके बाद सुलेमान जिन आगे आया। उसने कहा, आप कलिमा पढ़ें। अम्मी ने कलिमा पढ़ा। उसने कहा, मेरा काम यहाँ पर तबलीग दीन करना है और मैं आपको राह रास्त पर लाना चाहता हूँ। मैं तो पहले ही नादिम हूँ। अगर तुम मुझे राह रास्त पर लाओगे तो ये तो मेरी खुशनसीबी होगी। उसके बाद ये रफ़ी का बड़ापन था कि उन्होंने अपने बाबा को ये बात नहीं बताई और मुझे भी माफ़ कर दिया, क्योंकि इस पूरे किस्से में मैं तो शामिल थी ही नहीं। हाँ मेरे सामने सब कुछ हो रहा था। आज भी सुलेमान जिन अपनी बहन के साथ हमारे साथ रहता है और मैं सोचती हूँ कि इंसान कभी कभी दौलत और जायदाद के चक्कर में कितना बड़ा गुनाह कर लेता है। बड़ी खाला अगर जिन्नात के चक्कर में ना पड़ती तो मामू जान कभी न कभी तो सही हो ही जाते, लेकिन उन्होंने गंदे अमल करके खुद को बर्बाद किया, दुनिया और आखिरत बर्बाद की, और हम सब भी बिला वजह इस आग में झुलसते रहे थे। मैं आज अपने शौहर के साथ बहुत खुश हूँ। मामू जान अब इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए। लेकिन अगर सुलेमान नहीं आता तो हम लोग कभी सही नहीं होते। आज वो हमारे पूरे घर को संभाले हुए है।